خوش آمدید دوستو، ایک بار پھر پروپیسی اوڈیسی بائبل اسٹڈیز شاندار میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آپ مستقبل کو جان سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں وہ رب کی ہیں، لیکن جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی ہیں۔ آمین۔ یہاں نیو یارک شہر میں اپنے سے ہر ایک کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی جو ایمانداری سے آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ملاقاتیں بڑھ رہی ہیں۔ میں آج رات لوگوں کو تیسری بالکونی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے دلوں کو برکت دیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ ارے کیا آپ مجھ پر کوئی احسان کر سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کی تصویر لے سکتا ہوں؟ ہم ڈیبی کو لانے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم ایک تصویر لینا چاہتے ہیں۔ ہم میگزین کا ایک اچھا سرورق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میٹنگز کی رپورٹنگ کی جا سکے، اور آپ آج رات بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے کہاں چاہتے ہیں؟ اس نے مجھے کام کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دوستو، ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج رات آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ہمارے پاس بائبل کا ایک زبردست مطالعہ ہے جو بائبل کی پیشن گوئی میں امریکہ اور بابل کے موضوع سے نمٹ رہا ہے، اور کل صبح سے محروم نہ ہو۔ ہم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، شیطان کا نشان اور خدا کی مہر، اور اس لیے یہ مضامین بہت اہم ہیں۔ ایک بار پھر ان کا خیر مقدم۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اب پوری دنیا سے بہت سی مختلف زبانوں میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اس بائبل مطالعہ کا حصہ ہیں۔ وہ دوست جو 3 ABN ہوپ چینل انٹرنیشنل اور دیگر پر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک بار پھر احاطہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب جانتے ہیں، جب کیرن اور میں نے یہ سیمینار کرنا شروع کیے تو ہم نے تقریباً 36 پریزنٹیشنز کیے، اور اب ہم اسے 15 تقریباً نصف میں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے اپنی بات کرنے کا ڈبل وقت تبدیل کرنا ہوگا، ہر چیز کا احاطہ کرنے کی کوشش کرنا جو ہمیں احاطہ کرنا ہے۔ لیکن ہم آج رات ایک حیرت انگیز حقیقت، شاید چند حیرت انگیز حقائق کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 14 سبق ایک اور جانا ہے۔ بائبل کی پیشن گوئی میں بابل اور امریکہ کے بارے میں بات کرنا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ بائبل کی پیشن گوئی میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ چھوٹی حیرت انگیز حقیقت، امریکی آبدوزوں میں سے تازہ ترین کو کولمبیا کلاس کہا جاتا ہے۔ وہ 560 فٹ لمبے ہیں۔ یہ فٹ بال کے تقریباً 2 میدان ہیں، اور ان کا قطر 43 فٹ ہے، جو انہیں اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے پیچیدہ آبدوزیں بناتا ہے۔ ان کی قیمت تقریباً $12 ارب ہے۔ انہیں 40 سال تک ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایٹمی آبدوزیں ہیں۔ بلا شبہ انہیں وقتہ فوقتہ سامان اور خوراک واپس لانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پانی کے اندر رہ سکتے ہیں اور اپنے پانی کو خود صاف کر سکتے ہیں اور اپنی ہوا کو پاک کر سکتے ہیں، اور وہ ایک اور قسم کے خلائی اسٹیشن کی طرح ہیں سوائے اس کے کہ وہ پانی میں ہوں۔ وہ مختلف وار ہیڈز کے ساتھ 16 جوہری دیگر میزائل 8000 میل دور کہیں سے بھی درستگی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا کی قوموں میں سے امریکہ ہمارا بجٹ میرے خیال میں فوج پر $23,960 بلین، جو کہ اگلی 9 قوموں کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے۔ امریکہ یقیناً ایک سپر پاور ہے، اور ہاں، اس کا ذکر پیشین گوئی میں ہے، اور اسی طرح بابل ہے۔ میں چھوٹے حیرت انگیز حقائق کا جائزہ لینے جا رہا ہوں جو میں نے سیمینار کے شروع میں شیئر کیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ نے ہر پروگرام میں جگہ نہیں بنائی ہے۔ اب جانتے ہیں، بائبل ہمیں یرمیہ کی کتاب میں بتاتی ہے، اور سا کی کتاب 13ویں باب، کہ قدیم بابل سنہری سلطنت تھی، عالمی سلطنت تباہ ہو جائے گی اور کبھی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی۔ شہر جل گیا، تباہ ہوا کا رخ کیا۔ ملبہ صدام حسین اس پیشین گوئی سے آگاہ۔ اس نے خود کو اس عظیم بادشاہ نبوکدنضر کے دوبارہ جنم کا تصور کیا۔ اس نے کہا، میں بابل کو دوبارہ تعمیر کرنے جا رہا ہوں اور یہودیوں کی پیشین گوئی کو غلط ثابت کروں گا، اور اس نے لاکھوں خرچ کیے ایسا کرنے کے لیے کارکنوں کو بھیجنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی تھا اور نبوکدنضر کا چہرہ بھی۔ وہ عرب دنیا کا لیڈر بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایران کے ساتھ ساتھ کویت پر بھی حملہ کیا۔ لیکن یقیناً اب جانتے ہیں، خلیجی جنگ 1 اور خلیجی جنگ 2 کے بعد اس کے منصوبے بدل گئے۔ وہ زمین کے ایک سوراخ میں چھپا ہوا پایا گیا اور پھانسی دی گئی۔ اب آپ اس محل کی بھوتی باقیات کو دیکھ سکتے ہیں جو اس نے بنایا تھا،
اور اب دیکھیں گے کہ قدیم بابل کا ملبہ اب بھی جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے یہ کھنڈرات ہے۔ آپ خدا کی پیشین گوئیوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور تم کہو آمین۔ ہم اپنے سبق پر جانے والے ہیں۔ سوال نمبر 1، بہت کچھ کرنا ہے۔ پہلا سوال مکاشفہ 14 میں دوسرے فرشتے کا پیغام کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رب کی دوسری آمد سے پہلے 3 فرشتے پیغامات میگا فون کے ساتھ دنیا میں جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے کا پیغام خاص طور پر کہتا ہے، اور اب میرے ساتھ جوابات کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور فرشتہ نے کہا، بابل گر گیا، وہ عظیم شہر گر گیا، کیونکہ اس نے تمام قوموں کو اپنی حرامتکاری کے غضب کی شراب پلائی۔ بابل کی شراب پینے والوں کو آخرکار تجربہ ہوگا۔ بھیڑ کے بچے کا غضب۔ بائبل کہتی ہے، یہ کیوں کہتی ہے کہ گر گیا؟ گر گیا کیونکہ بابل کا آغاز بابل کے ایک مینار سے ہوا تھا اور وہ گرا۔ لیکن بنی اسرائیل قدیم بابل میں قید تھے، پھر بابل گر گیا اور روحانی اسرائیل بابل میں اسیر ہو گیا ہے۔ خدا کے لوگوں کو پکارا جا رہا ہے اور یہ گرنے والا ہے۔ گر گیا، گر گیا، پھر کبھی نہیں اٹھے گا۔ نمبر 2، خدا نے مکاشفہ 17 میں بابل کی علامت کیسے ظاہر کی؟ اب اگر میرے جواب پر جانے سے پہلے آپ کے پاس اب کی بابلیں ہیں تو اپنی بائبل کو مکاشفہ 17 میں تبدیل کریں۔ ہم مکاشفہ 17 مکاشفہ 13 کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ان درندوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں ان اقتباسات میں ملتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف جوابات دیتا ہے جہاں کوئی الجھن نہیں ہے۔ آیت 3، اور فرشتے یوحنا رسول سے بات کرتے ہوئے شروع کریں۔ وہ مجھے روح کے ساتھ بیابان میں لے جاتا ہے، اور میں نے ایک عورت کو ایک سرخ رنگ کے درندے پر بیٹھا ہوا دیکھا جو کفر کے ناموں سے بھرا ہوا تھا، 7 سر اور 10 سین، اور عورت ارغوانی اور کرمزی رنگ کے کپڑے پہنے اور سونے اور قیمتی پتھروں اور موتیوں سے مزین تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ تھا جو اس کی حرامتکاری کی مکروہات اور گندگی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی پیشانی پر مکاشفہ میں سب اب کو خدا کی مہر حیوان کا نشان ملا۔ ماتھے پر کچھ ملا ہے، نام لکھا ہے، اسرار بابل عظیم کسبیوں کی ماں، اس کی بیٹیاں ہیں اور زمین کی مکروہ چیزیں۔ یہ ایک عالمگیر ادارہ ہے، اور میں نے اس عورت کو مقدسین کے خون اور عیسیٰ کے شہیدوں کے خون سے شرابور دیکھا، اور جب میں نے اسے حیرت زدہ دیکھا تو میں بڑی حیرت سے حیران ہوا۔ اور اگر آپ آیت 9 پر جائیں تو یہ کہتا ہے، یہاں وہ ذہن ہے جس میں عقل ہے۔ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر عورت بیٹھی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جسے 7 پہاڑیوں کا ابدی شہر کہا جاتا ہے؟ ہاں، وہ کون سا شہر ہے؟ روم جانا جاتا ہے۔ 7 پہاڑیوں کا گوگل شہر روم آتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکاشفہ 17:18۔ وہ عورت جسے تم نے دیکھا وہ عظیم شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب لکھی جب وہ روم کے جزیرے پٹموس پر قید تھا۔ روم وہ عظیم شہر تھا جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا تھا۔ روم 7 پہاڑیوں کا ابدی شہر ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس ہے، قیمتی پتھر، بڑی دولت 7 پہاڑیوں کے درمیان بیٹھی ہے اور یہ سلطنتوں کو جوڑ رہی ہے۔ یہ غلط نہیں سمجھا جا سکتا۔ بائبل کی پیشن گوئی میں ایک عورت ایک چرچ کی علامت ہے۔ اس طرح پاک عورت کو ہم مکاشفہ 12 میں دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں سے ملبوس، اور یہ درندہ اسے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خدا کا چرچ ہے۔ یہ قدرتی روشنی کے ساتھ ملبوس ایک اچھا ہے، جبکہ یہ بے وفا عورت بت پرستی میں ملوث ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اب جانتے ہیں اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو آپ کسی اور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ ایک بے وفا چرچ ہے کیونکہ یہ بت پرستی اور عیسائیت کا سمجھوتا ہے۔ وہ کتاب سے ہٹ گئی ہے۔ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ گرنے والی عورت کون ہے، کیونکہ مکاشفہ 17 نے کہا کہ جب وہی لکھی جاتی ہے تو وہ حکومت کر رہی تھی۔ اسی کو اب کافر روم کہتے ہیں جس پر قیصروں کی حکومت تھی، لیکن پھر یہ منتقلی ہوتی ہے کیونکہ قیصر اپنی نشست اور طاقت اور اختیار پوپ روم کو دیتے ہیں، جس کی حکمرانی چرچ کے ذریعے ہوتی ہے۔ انہیں فوج ملتی ہے، وہ مذہبی سیاسی طاقت بن جاتے ہیں۔ یسوع نے 29 پیلاطاس سے کہا، پیلاطاس نے کہا کیا تم بادشاہ ہو؟ یسوع نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میں ایک روحانی بادشاہی کا بادشاہ ہوں۔ تم ڈرتے ہو کہ میں رومی سلطنت کے لیے خطرہ ہوں؟ مسیح نے کہا میں اس قسم کی سیاست میں شامل نہیں ہوں۔
ये एक रूहानी सल्तनत है। आप आमीन कहीं। अब मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। फिर बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिर्फ इस तरह कहना ये एक अच्छे पैगाम का फॉर्मेट है। आपको बताने जा रहा हूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था। मुकाशिफा 13 में 2 जानवर हैं। लोग हमेशा कहते हैं हैवान का निशान दरअसल 2 दरिंदे हैं। पहले जानवर में, और फिर अब 11वीं आयत पर जाएं। एक दूसरा जानवर है। पहला हैवान इस औरत के बारे में मुकाशिफा 17 में बात कर रहा है। रोम वाकई मजहबी सियासी ताकत का मरकज बन जाता है। मैं जानता हूं कि चर्च कुस्तुनतुनिया के साथ तकसीम हो गया था और आपको रूसी ऑर्थोडॉक्स मिल गया है और आपको यूनानी ऑर्थोडॉक्स मिल गया है। वैसे फ्रांसिस ने इत्तेहाद हासिल कर लिया है। फ्रांसिस पहला पोप था जिसने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के वालिद पोप से मुलाकात की है। मिस्र में ऑर्थोडॉक्स चर्च के क़िब्ती रहनुमा और यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ इसने इन सब को दोबारा एक साथ लाया है, बशमूल लूथरियन के साथ सुलह करना। जिसने एहतजाज किया, जख्म का बहुत अच्छा इलाज हुआ है। और ये वही अल्फाज हैं जो फ्रांसिस ने इस्तेमाल किए हैं। वो कहता है हमें जख्म को भरना चाहिए। वही अल्फाज जो आपको बाइबल में मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि प्रोटेस्टेंट मुस्लिहीन ने क्या कहा, यह गलत नहीं समझा जा सकता कि वही 17 किसके बारे में बात कर रही है। अब मैं इसे वाज़े करना चाहता हूं। हम दूसरे हैवान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अमेरिका है, और प्रोटेस्टेंट जिन्होंने बाइबल की सच्चाई से समझौता किया है। मैं एक वफादार अमरीकी हूं। मुझे अपने मुख से प्यार है। मैं एक प्रोटेस्टेंट हूं। मैं कैथोलिक स्कूल गया। मैं 2 मुख्तलिफ कैथोलिक स्कूलों में गया। जन्नत में बहुत से फिरकों से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटिज्म के लोग होंगे। क्या तुम मुझे सुनते हो? हम अफराद की बात नहीं कर रहे हैं। हम बाइबल की सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। पोलिस ने कहा क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। तो मैं तुमसे पूछता हूं क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। मैं आपको सच बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, देखो प्रोटेस्टेंट मुस्लिहीन ने क्या लिखा। ये औरत किसकी नुमाइंदगी करती है? जॉन वाकलिफ। वो एक कैथोलिक पादरी था। इसने बाइबल का पहला अंग्रेजी तर्जमा किया। हम फर्ज करते हैं कि दज्जाल उन तमाम शरीरों का सरबराह रोम का पोप है। वो एक है। अब जान आस को देखो जो मर गया। इसे दाव पर लगाकर जला दिया गया। वो एक कैथोलिक पादरी था जिसने बात की क्योंकि चर्च बाइबल से हिट रहा था और उसकी वजह से इसे मार दिया गया था। उन्होंने कहा कि पोप हकीकी दज्जाल है जिसके बारे में लिखा है कि वो खुदा के मंदिर में उन लोगों के दरमियान बैठते हैं जहां मसीह की इबादत की जाती है। वैसे आप पहले किसी को जानते हैं जिसने कहा कि पोप का दफ्तर दज्जाल है? एक पोप ग्रिगोरी। उन्होंने कहा कि जो कोई पोप के दफ्तर को सुप्रीम फादर कहने की जुर्रत करता है इसे दज्जाल बना देता है। वो जानते थे कि यह मसीह की तालीमात से दूर हो रहा है। फिर यकीनन अब जानते हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने लिखा कि विकर एक गैर हाजिर चीफ की जगह पर है। ऐसा पादरी मगर दज्जाल क्या है? मैं जानता हूं कि मुझे यकीन है कि पापाई किसकी बादशाही है। बाबुल। ये सब लूथरियन हैं। उनके बुनियादी असातिज़ा ने यही सिखाया। अब थॉमस क्रैमर को देख सकते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड के रहनुमाओं में से एक अपने ईमान के लिए दांव पर लगा दिया गया था। एक पादरी। इसके बाद रोम दज्जाल और पोप इनफरादी पोप की नशिस्त होना है। अब देखते हैं, हम किसी इनफरादी पोप की बात नहीं कर रहे हैं। हम दफ्तर के बारे में बात कर रहे हैं। तुम समझो, पोप खुद ही दज्जाल है। मैं डैनियल और मुकाशिफा में बहुत से दूसरे सहीफों पुराने मुसन्निफीन और मजबूत वजह से साबित कर सकता हूं। अब मुबल्लिगीन का वो शहजादा बपटिस्ट चार्ल्स सपर्जें हासिल कर सकते हैं। इसने क्या कहा सुनिए। देखो, इसकी पेशानी पर असरार बाबुल का नाम लिखा हुआ है, अजीम कस्बियों और जमीन की मकरू चीजों की मां। चर्च ऑफ रोम और उसकी तालीमात कूड़े का एक वसी पहाड़ है जो खुदा की सच्चाई का अहाता करता है। और मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं अब से जॉन वेज़ली के बारे में बात कर सकता हूं। मैं अब से जॉन नाकस प्रेस्बिटेरियन वेज़ली मेथोडिस्ट के बारे में बात कर सकता हूं और सिर्फ तमाम इस्लाकारों से गुजर सकता हूं। वो सब इस बारे में मुत्तफिक थे, लेकिन अब ये सिखाना सियासी तौर पर गलत है। सच्चाई की तबलीग करने को गैर मोहब्बत कहते हैं, लेकिन ये वही है जो पेशिंग गोई ने कहा। तो आप ये कहे बगैर उसके अर्द गिर्द कैसे जाएंगे? आपको ये कहना है। आमीन। लारो अपनी किताब में वो दरअसल यहां कैल्विन से हवाला दे रहा है। दानियाल और पाल ने पेशीन गोई की थी कि दज्जाल खुदा के हैकल में बैठेगा। हम इसे पोप बनने की तस्दीक करते हैं।
کچھ لوگ ہمیں بہت سخت سمجھتے ہیں اور ہمیں سنسر کرتے ہیں جب ہم رومن پونٹف کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی دفتر پوپ خود ایک عظیم آدمی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ جنت میں ہوں، مجھے نہیں معلوم، خدا ان چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، آمین۔ لیکن یہ کہنے کا دفتر کے ایک آدمی زمین پر مسیح کے لیے راہب ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم روح القدس کے ذریعے سیدھے یسوع کے پاس جا سکتے ہیں، ہمیں کسی پادری یا پوپ سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خیال کہ ایک آدمی محل میں رہے گا اور کہے گا کہ وہ عیسیٰ کا نمائندہ ہے جو دھول بھری سڑکوں پر چلتا تھا اور زیتون کے درخت کے نیچے زمین پر سوتا تھا جن پر انحصار کرنا پڑا۔ اس نے کہا لومڑیوں کے سوراخ ہوتے ہیں، یسوع نے کہا کہ ہوا کہ پرندوں کا گھونسلہ ہے، ابن آدم کے پاس سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ شخص محل میں رہتا ہے ایک بادشاہ کی طرح۔ اس تصویر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ مکاشفہ آیت 6 میں نے دیکھا اب وحی کی خصوصیات کو بیان کرتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، میں نے عورت کو مقدسین کے خون اور عیسیٰ کے شہداء کے خون سے شرابور دیکھا۔ یہ ستانے والی طاقت ہے۔ صرف لفظ انکویزیشن ٹائپ کریں، اسپین روم کا دورہ کریں اور اذیت کے آلات کو دیکھیں جو چرچ نے بنایا تھا۔ خوفناک تشدد کرنا، میں جو کچھ ہوا اس میں بھی نہیں جا سکتا۔ بائبل کے عقیدے کی مذمت نہ کرنے پر مردوں، عورتوں، بچوں کو ان کے والدین کے سامنے خوفناک تشدد کا نشانہ بنایا۔ میرا مطلب ہے یہ خوفناک تھا، داؤ پر جل گیا، آہستہ آہستہ جل گیا۔ میرا مطلب ہے یہ خوفناک تھا۔ کیا ہوا؟ ان میں سے لاکھوں اپنے اس بارے میں پڑھنا ہوگا کہ تاریک دور کے دوران جو کچھ ہوا اسے ایک وجہ سے تاریک دور کہا جاتا ہے۔ بائبل میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راستے کے لیے روشنی ہے، اور بائبل عام لوگوں سے چھین لی گئی کیونکہ انہوں نے کہا آپ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ نہیں، انہیں ڈر تھا کہ وہ اسے سمجھ جائیں گے، اور وہ نجات بیچ رہے تھے اور ان کی عبادت کی جا رہی تھی، اور وہ عیش و عشرت بیچ کر پیسے بٹور رہے تھے۔ مارٹن لوتھر نے اسی کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور جب لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کیا، نجات ایک تحفہ ہے جس کی قیمت یسوع نے اپنے خون سے ادا کی، وہ خوف زدہ تھے۔ انہوں نے لوگوں سے بابلی چھین لیں اور بڑی توہم پرستی اور اندھیرے میں آ گئے۔ اس وقت کے دوران ایک اور چھوٹی سی حیرت انگیز حقیقت جس میں ڈالوں گا، میں نے سوچا کہ یہ دلچسپ ہے۔ 2005 میں کیرولین اسمتھ نے اپنے ماتھے کی جگہ نیلام کی۔ یہ غریب ماں، اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں داخل کروانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس طرح لاس ویگاس میں رہتے ہوئے اس نے کہا میں اپنے ماتھے کی جگہ نیلام کروں گی اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کے لیے ٹیٹو بنواؤں گی، اور اس طرح کام نے اسے اپنی پیشانی پر ٹیٹو کرنے کے لیے $10,000 دیے۔ پیشانی کا نشان جو آپ مکاشفہ 17 میں دیکھتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ عورت کیا کرتی ہے۔ اب جانتے ہیں حیرت انگیز حقائق۔ فلم بنائی، آپ کو اسے دیکھنا چاہیے، یہ مفت میں آن لائن ہے۔ دلہن بابل میں حیوان، اور ہمارے پاس یہ ماڈل تھا۔ ہمیں اصل میں عبرانی میں پتا چلا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ عبرانی ہے۔ ہاں، اصل میں اس عنوان کو ماتھے پر کیسے لگایا جائے، اور یہ اصل میں صحیح تحریر ہے، تو اس کی پیشانی پر اسرار ہے۔ قصبیوں کی عظیم ماں، دوسرے گرجا گھر اس سے اور زمین کے مکروہات سے نکلے۔ نمبر 3، مکاشفہ 17 سے کیا اور کیا ثبوت لوگوں کی طرف پوپ روم کو روحانی بابل کے طور پر بتاتے ہیں۔ ہم چند منٹوں میں امریکہ پہنچ جائیں گے، لیکن ہم اب بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ بابل مکاشفہ 17 میں ہے۔ تم جانتے ہو کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پر شک کریں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ بابل میں ہیں۔ دوسرے فرشتے کا پیغام اس کی طرف سے نکلا۔ پھر آپ وہی 18 پر جائیں۔ دوسرے فرشتے کا پیغام ختم ہونے سے ٹھیک پہلے دوبارہ دہرایا جاتا ہے، اس سے باہر آؤ۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بہت سارے جھوٹے مذاہب میں ملایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آخر سے پہلے متحد ہو جائیں، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حیوان کیا متحد ہونے والا ہے۔ خدا کے لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے متحد ہوں؟ کیونکہ ہم ایک خوبصورت گانا گاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کے کلام پر متحد ہیں۔ یہ سچ پر ہے، ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ فاحشہ بے وفا عورت چرچ کی علامت ہے، حیوان کی بادشاہی ہے، یہ ریاست کی علامت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک مذہبی سیاسی ادارہ بننے جا رہا ہے، یہ ایک بین الاقوامی طاقت بننے جا رہا ہے۔ لفظ کیتھولک کا مطلب ہے عالمگیر۔ مکاشفہ 17 ہمیں کچھ اضافی خصوصیات فراہم کرتا ہے۔ وہ توہین رسالت کی مجرم ہے۔ اسی طرح مکاشفہ 13 میں حیوان ہے۔ اس نے جامنی اور سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کا ایک ذہنی نوٹ بنائیں۔ موتی اور سونا اور ہر چیز کا ذکر نہ کرنا۔ اسے ماں کہا جاتا ہے۔ اس کی فاحشہ بیٹیاں ہیں جو اس سے نکلی ہیں۔ وہ سنتوں کو ستاتی اور شہید کرتی ہے۔
एफ वो 7 पहाड़ों पर बैठी है। जी वो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करती है। ठीक है, मजीद बरह ये हमें बताता है कि इसे कस्बियों की मां कहा जाता है, जिस तरह रोमन चर्च होली मदर चर्च के नाम से जाना जाता है। हम इस तक पहुंच जाएंगे। फाहिशा अरगवानी और सुर्ख रंग की थी। हैवान के 7 सर हैं जिनमें औरत सवार होती है। और हम बाद में सुनते हैं फरिश्ता इसे 7 पहाड़ कहते हैं। जामनी और सुर्ख रंग का। अब ये दिलचस्प है कि न सिर्फ काफिर रोमन ने किया। शहंशाहों जामनी और सुर्ख रंग का लिबास पहने तो ये ऐसी चीज है जो काफिर रोम के तौर पर शुरू हुई, लेकिन फिर इसे रोमन चर्च ने अपनाया। कार्डेलिज सुर्ख पहनना। बिशप जामनी रंग के लिबास पहनते हैं। ये उनका सरकारी रंग है। हता कि उनकी अपनी तहरीरों में और मैं बहुत से हवाले दे सकता हूं दोस्त, मेरे पास उन सब के लिए वक्त नहीं है। ये रहा फादर जॉन ए ओबराइन की तरफ से कि सनेचर के बजाय इतवार का दिन मनाना मादर चर्च की याद दहानी के तौर पर रहता है, जहां से गैर कैथोलिक फिरके अलग हो गए थे। वो बुनियादी तौर पर क्या कह रहा है? ये तमाम उंजेली बशारत के गिरजाघर जो अब भी इतवार को गिरजाघर जाते हैं, उन्होंने ये हमसे हासिल किया। हमने इसे बदल दिया। वो हमारी पैरवी करते हैं। एक भी सहीफा ऐसा नहीं है जो हमें पहले दिन को मुकद्दस रखने का हुक्म देता हो। और ये वाहिद नजरिया नहीं है। और भी अकायद हैं जो इनमें से बहुत से प्रोटेस्टेंट उंजेली बशारत के गिरजाघरों में अब भी मौजूद हैं। उन गिरजाघरों में बहुत सारे अच्छे मुखलिस लोगों की मनादी की जाती है, लेकिन वो कुछ चीजों की पैरवी कर रहे हैं जो मर्दों की रवायात हैं, न कि खुदा के अहकाम। और कैथोलिक उंगली उठाते हैं और वो इसका मजाक उड़ाते हैं। इसका कहना है कि ये एक माँ का चर्च है। बेटियां ऐसे निकली हैं जैसे बेटियां कभी कभी अपनी माओं से मलती हैं। मुमासलतें होने वाली हैं और हम देख सकते हैं कि अब जानते हैं हेनरी अष्टम के दौर में इंग्लैंड के चर्च के बाद भी जब उसने कैथोलिक चर्च से अलहदगी इख्तियार की, वो इसी तरह की बहुत सी चीजों को मनाते रहे। उन्होंने शुरू में सिर्फ प्रोटेस्टेंट में मामूली तब्दीलियां की। नंबर 4 मुकाशिफा 13 और 17 के हैवानात का मवाजना कैसे है? ठीक है, अब अपनी बाइबल पर जाएं। हम मुकाशिफा 13 में पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों पर तवज्जो दें। अगर आपके पास अपने आले पर बाइबल है, आप में से कुछ घर पर देख रहे हैं, आपके हाथ में कागजी बाबले हैं। मैं समंदर की रेत पर खड़ा हुआ और मैंने एक जानवर को समंदर से उठते देखा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सींगों पर 10 ताज थे। और आप देख सकते हैं कि इसमें तौहीन रिसालत शामिल है और बहुत सारी एक जैसी खुसूसियात हैं। वैसे जब आप 11वीं आयत 13वीं बाब 11वीं आयत तक पहुंचेंगे, पहले जानवर को मोहलिक जख्म लगने और मोहलिक जख्म भरने के बाद ये कहता है, फिर मैंने एक और जानवर को जमीन से निकलते देखा। तो अब 6 हैवानों तक पहुंचने से पहले इस बाब को देखें। मुकाशिफा का 12 बाब दोबारा आपको एक हैवान मिला 7 सर 10 सींग। और इस तरह हम शैतान के बारे में बात कर रहे हैं जो इन मुख्तलिफ सियासी ताकतों के जरिए काम कर रहा है। मैं समंदर की रेत पर खड़ा हुआ और मैंने एक जानवर को समंदर से उठते देखा जिसके 7 सर थे और उसके सरों पर 10 सींग और एक गुस्ताखाना नाम। हमने सीखा है तौहीन रिसालत अपने आप को खुदा की जगह पर डाल रही है। यहां ये फिर है। आपको याद है जब ये मुकाशिफा बाब 17 में कहता है, औरत अब इस हैवान पर बैठी है। अगर घोड़ा किसी शख्स पर सवार हो तो इस शख्स को चोट पहुंचेगी। समझा जाता है कि यह घोड़े पर सवार शख्स है। घोड़े पर सवार शख्स को घोड़े पर काबू रखना चाहिए, ठीक है? तो यहां आपको इस औरत की सवारी मिल गई है। सींगों पर ताज के साथ ये ताकतें, जोड़ तोड़ और डिक्टेट करना और मुख्तलिफ रियासतों को बताना कि क्या करना है। अब जानते हैं कि पोप ने तारीख दौर में क्या किया। उन्होंने कहा कि बादशाह खौफजदा है। एक बादशाह था जो 3 दिन तक बर्फ में खड़ा पोप से मुआफी मांगता रहा और पोप ने इसे वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पोप बादशाही में लोगों को बता सकता था कि हम इंट्राडिकेट का तलफ्फुज करने जा रहे हैं। पूरी बादशाही खारिज होने वाली है। जब तक आपका बादशाह तौबा नहीं करता मजीद गुनाह मुआफ नहीं होते। और लोग बादशाह के खिलाफ बगावत करेंगे जब तक कि वो पोप की बात ना माने, क्योंकि पोप उनके ज़मीर को कंट्रोल करता है। इसने कंट्रोल किया कि वो जन्नत में गए या जहन्नम में। तुम्हें पादरी और बाप से गुजरना पड़ा, उनके गुनाह मुआफ नहीं होंगे। तो वहां जबरदस्त ताकत थी। ये कोई हादसा नहीं जब आप शतरंज का खेल खेलते हैं, आपको बादशाह और मलिका और एक बिशप 2 बिशप मिल गए, हर तरफ एक। इस तरह उन्होंने रूमी सल्तनत की तकसीम में उन उम्रों के जरिए काम किया। क्या मैं समझदार हूं? तुम अब भी मेरे साथ हो? मैंने औरत को एक सुर्ख रंग के जानवर पर देखा जो कुफर के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सर और 10 सींग थे।
बाबुल लफ्ज का मानी और माखज किया है। आपको याद है कि अगर आप मुकाशिफा के 11वीं बाब पर जाएं तो यह हमें बताता है कि सैलाब के बाद शायद वो यकीन नहीं करते थे कि खुदा एक बार फिर सैलाब से दुनिया को तबाह नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक मीनार बनाने जा रहे हैं, अगर वो आसमान तक पहुंच जाए। इसे कामों से नजात कहते हैं। हम नहीं, खुदा ने कहा बिखरे। खादी ने उनसे कहा कि दुनिया भर में फैल जाओ, फलदार बनो और बढ़ो। उन्होंने कहा नहीं, हम जमा होकर शहर बनाने जा रहे हैं। और इसे बाबुल कहा जाता था, जो बाद में बाबुल के नाम से मशहूर हुआ। और तमाम बाइबल के जरिए अपने पहले शहर के दरमियान एक जंग हासिल की है, जिसे सालम कहा जाता था। मलिक जीदुक बादशाह बाद में यरूशलम के नाम से जाना जाता था। शलविम यरूशलम और बाबुल, जिसे बाद में बाबुल के नाम से जाना जाता है। और वहां पैदाइश में आपको मिल्चीजीदुक मसीह की एक किस्म बादशाह मिला है। सलीम का वो एक बादशाह और पादरी है जो रोटी और शराब लाता है। यसू आखिरी रात का खाना वो मुक्सिद है। लेकिन फिर आपको नमरूद मिल गया है। वो बाबुल को बाद में बनाता है। वो एक मीनार बनाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, और खुदा इस पर लानत भेजता है। वो वहां उनकी जुबानों को उलझा देता है। और मैंने आपको जवाब पहले ही दे दिया है, क्योंकि मैं पुरजोश था। ये कहता है चिल्लू वहां नीचे चलते हैं। गौर करें कि खुदा क्या कहता है। हमें खुदा जमा, आइए हम नीचे जाएं और उलझाएं, उनकी जुबान को उलझाएं ताकि वो एक दूसरे को समझ ना सके। बाबुल और बाबुल जुबानों की उलझन की नुमाइंदगी करते हैं। गौर करें कि ये पैदाइश 11 में क्या कहता है। इसलिए इसका नाम बाबुल रखा गया, क्योंकि वहां रब ने क्या किया, तमाम जमीन की जुबान को उलझा दिया। और आजकल ऐसे गिरजाघर हैं जो कहते हैं कि जुबानों की उलझन रूह अल-कुद्स की अलामत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके बरक्स है। अमाल के बाब 2 में खादी ने लोगों को वो जुबानें बोलने की सलाहियत देकर जो वो रस्मी तौर पर नहीं जानते थे, खुशखबरी की मनादी करने के मकसद से तालीम हासिल नहीं करते थे, बाबुल की लानत को तब्दील कर दिया था। अब खुदा को हमेशा जुबानों का माफौक अल-फितरत तोहफा देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास कोई मुतरज्जिम है, पादरी कालोस हस्पानवी में इसका तर्जमा कर रहे हैं जो मैं अब तबलीग कर रहा हूं, और हमारे पास AI का तर्जमा है जिसकी मैं अभी तबलीग कर रहा हूं, तकरीबन 14-15 मुख्तलिफ जुबानों में। खुदा का माफौक अल-फितरत तोहफा इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर वो कभी कभी माफौक अल-फितरत इलाज करता है, क्योंकि वहां कोई डॉक्टर नहीं होता है, और कभी कभी वो डॉक्टर का इस्तेमाल करता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? और इसी तरह लेकिन ख्याल, और कितने लोग अब जानते हैं, वो गिरजा घर जाते हैं और कहते हैं हमें रूह अल-कुद्स मिल गया है। हमारी बात सुनो। और मैं बेरहम नहीं बनना चाहता, क्योंकि पहले गिरजा घर जिनमें मैं गया था वो करिश्माती गिरजा घर थे जो जुबानों में बात करते थे। प्यारे लोग मुझसे बहुत अच्छे थे, लेकिन जुबान का ये तोहफा मुझे नहीं मिला। कहने लगे, आप ये साबित करते हैं कि आपको रूह अल-कुद्स का तोहफा मिला है जुबानों में बोलकर। मुझे ये बाइबल में नहीं मिलता। बाइबल कहती है आपको मालूम होगा कि आपको ये तोहफा रूह, मोहब्बत, खुशी, अमन के फलों से मिला है, बुड़बुड़ाने से नहीं। पाल ने कहा, मैं अपनी समझ से 5 अल्फाज कहूंगा कि अगर कोई समझने वाला ना हो तो मैं 10,000 में दूसरों को अनजान जुबान में सिखा दूं। पुलिस ने कहा, अगर बगल गैर यकीनी आवाज देता है, कौन जंग के लिए तैयार करेगा? मैं 5 अल्फाज कहूंगा जो आप समझते हैं। खुदा हमें तर्जमा करने के लिए जुबानों का तोहफा देता है ताकि लोग समझ सकें। आमीन। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि मैं एक टींजेंट पर बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं। कैरन सामने है। जब मैं तबलीग कर रहा हूं तो वो मुझे इशारे देती है, इसलिए वो वहां है। कभी वो जाती है, कभी कभी वो जाती है, कभी कभी वो जाती है, कभी कभी वो जाता है। ये सच है। इसे देखो। ठीक है। सवाल नंबर 6। जब खुदा अपने लोगों को वहां से निकल जाने की ताकीद करता है तो बाबुल को कैसे बयान करता है? जवाब दें। इसने जोर जोर से पुकार कर कहा, ये अजीम बाबुल गिर गया और टोपी बन गया। अब हम मुकाशिफा 18 में हैं, हम मुकाशिफा 14 में नहीं हैं। खुदा ये पैगाम फिर देता है, इसलिए हम इसे यहां दे रहे हैं, क्योंकि खुदा इसे मुकाशिफा में वक्त के आखिर में देता है। इससे बाहर आओ। औरत क्या है? वो और उसकी बेटियां। इससे बाहर आओ मेरे लोग। अब देखते हैं कि अहदनामा कदीम में खुदा के लोगों को निबूकदनजर बाबुल ले गए, और वो वहां 70 साल रहे, और वो आराम से थे, और वो जुबान बोलते थे, और उन्होंने दोस्ती की, और उन्होंने माल हासिल करना शुरू किया। और फिर खुदा ने कहा, बाबुल तबाह होने वाला है, आपको डाज से बाहर निकलने की जरूरत है। वबाएं गिरने वाली हैं, ये बुरी रूहों से भरा हुआ है। और इन्होंने कहा, लेकिन खादोनद, हम यहां इतने अरसे से हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं?
और जो ठहरे वो भुगते, जो छोड़ गए वो मुबारक हो गए। अब जब लोग ये पैगामात सुनते हैं जो हम शेयर कर रहे हैं और वो कहते हैं, अब जानते हैं पादरी डोग, अगर मैं आपकी बातों पर यकीन करता हूं तो इससे मेरे मजहबी तरीकों पर असर पड़ेगा। ये ठीक है। और जब यसू ने रसूलों को मनादी की तो इसने उनके मजहबी तरीकों को मुतासिर किया। ईसा ने शुरू किया, इसने कहा मेरे बाप का घर नमाज का घर है। आखिर में वो कहता है तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान रह गया है। और मसीह बाहर चला गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई को मुस्तरद कर दिया था। और यसू का चर्च बन गया। मोमिनीन और घरों में मिलते थे और वो खेतों में मिले और उसके लोग बाहर निकल आए। कुछ को यहूदियों की इबादतगाहों से निकाल दिया गया, उन्हें सताया गया। और यसू ने कहा अपने पैरों की खाक झाड़ो, क्योंकि अगर वो मेरा कलाम कबूल नहीं करते ये सदविम और उमुरा के लिए आसान हो जाएगा। मसीह ने यही कहा, अगर वो हक को झटलाएं ये नैनवो के लोगों के लिए आसान होगा जहां यूना ने मनादी की थी, क्योंकि वो यूना की मनादी को सुनते थे। लेकिन अगर तुम मेरे कलाम की तबलीग करो और वो इसे रद्द कर दें, खुदा आपको बरकत देगा। लेकिन दुनिया पर फैसला आने वाला है। दोस्तों, आप साथ आखिरी ताउन नहीं चाहते। इससे बाहर आओ मेरे लोगों, वो हमें अपने बच्चे कहता है। आमीन। यसू ने बाबुल पर इल्जाम लगाया कि वो दुनिया को अपनी शराब से मदहोश कर रहा है। ये क्या नुमाइंदगी करता है? ये बाबुल की झूठी तालीमात की नुमाइंदगी करता है। मसीह का नजरिया, इसने कहा ये नई शराब है, तुम नई शराब को पुरानी शराब की खालों में ना डालो, ये ताज़ा है। बाबुल की शराब को खमीर किया जाता है, ये लोगों को शराबी बना रहा है, जैसा कि शराब लोगों को गलत किस्म की रूह में उलझा देती है। औरत के हाथ में सोने का प्याला किस चीज से भरा हुआ है? मकरूहात और उसकी जिनाकारी की गंदगी। जमीन के बाशिंदों को इसकी बदकारी की शराब से मदहोश कर दिया गया है। मैं आपको सिर्फ एक फौरी मिसाल देता हूं। क्या मैं बहुत मखसूस होने जा रहा हूं? आप अब सच चाहते हैं, ठीक है। मुझे एक और मुलाकात हुई। मेरे पास खोने को क्या है? मुझे यहां एक फहरिस्त मिली, जैसी आप मुझे एक ख्याल देना चाहते हैं। अगर आप चर्च जा रहे हैं जो कहता है जब आप मर जाते हैं तो आप फैसले के दिन से पहले जहन्नम में जाते हैं, आप बाबुल में हैं। अगर आप किसी चर्च में जाते हैं जिसमें कहा गया है कि आप अपने मुर्दा खानदान के अफराद से बात कर सकते हैं क्योंकि वो क़यामत से पहले सीधे आसमान पर जाते हैं, आप बाबुल में हैं। अगर आप गिरजा घर जा रहे हैं जहां लोग बुतों से दुआ कर रहे हैं और खुदा कहता है आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको अपना ज़हन बनाना होगा अगर आप यसू की पैरवी करने जा रहे हैं या आप बाबुल की पैरवी करने जा रहे हैं। लेकिन आप बाबुल में हैं। अगर आप किसी गिरजा घर जा रहे हैं जहां मुबल्लिग कह रहा है आप हमारी विजारत को काफी रकम भेजेंगे और खुदा आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, आपको सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाएगा, इस खुशहाली को तबलीग कहते हैं, आप बाबुल में हैं। वो कौन फनकार हैं और वो बहुत सारे प्यारे लोगों को भड़का रहे हैं जो मुखलिस हैं। अगर आप एक ऐसे गिरजा घर में हैं जो कह रहा है कि 10 अहकाम को खत्म कर दिया गया है क्योंकि हम फजल से बचाए गए हैं, तो आपको मजीद 10 अहकाम को बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। बाबुल ये शैतानों के अकायद हैं और मैं बच्चों को बपित्समा देने, जाली बपित्समा देने के बारे में बात कर सकता हूं। नजरिया के एक बार जब आप बच जाते हैं तो आप खो जाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यह ख्याल कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्द मर्द से शादी करता है या मर्द औरत से शादी करता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? यसू ने कहा खुदा ने शुरू में नर और मादा को बनाया। आमीन। अब ऐसे गिरजाघर हैं जो इसकी तकदीस कर रहे हैं और मैं कुछ जगहों को जानता हूं, कुछ ममालिक मुझे अवामी तौर पर यह कहने पर गिरफ्तार करेंगे, लेकिन यह बाबुल है। जाली मोहब्बत कामों से निजात। यह ख्याल कि आप हफ्ते के किसी भी दिन को मुकद्दस कर सकते हैं और यह एक नया सब बन जाता है। बाबुल। मेरे लोगों, इससे बाहर आओ, खुदा के कलाम पर कायम रहो, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप कहेंगे यसू ने कहा, जब तक आप ये कह सकते हैं रब फरमाता है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? बस ये नई शराब यसू की खुशखबरी है, वो नशा आवर शराब जो औरत के प्याले में है। वैसे कैथोलिक चर्च खमीर शदा अल्कोहल इस्तेमाल करता है। मैं मिलिट्री स्कूल में सर्विस में जाता था। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बताया था कि पादरी एक दिन में कई खिदमात अंजाम देगा और लोग इससे शराब नहीं पीते। लोगों को रोटी मिली लेकिन प्याले में से सिर्फ काहे नहीं पिया। और तीसरी या चौथी सर्विस तक इसे टपसी हो रही थी। और मुझे एक बार याद है इसने मुझे उड़ा दिया जब वो मास कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। हाँ, और उसने आयत का हवाला दिया, जो आपके मुंह में जाता है वो आपको नापाक नहीं करता बल्कि जो निकलता है। और मैंने कहा हाँ, लेकिन जब तुम तंबाकू नोशी करते हो जो निकलता है वो नापाक है। मजहबी हुक्काम का हुक्म है कैथोलिक तालीम के मुताबिक इसके तमाम अरकान कैथोलिक चर्च को सहीफे के मजाज जिंदा मुतरज्जिम के तौर पर तस्लीम करते हैं। आप कलाम की तशरीह नहीं कर सकते।
चर्च को ये अब के लिए करना चाहिए। ये अपने लोगों पर ब्लाइंडर डालने के मुतरादिफ है। क्या आप जानते हैं कि कुछ गिरजाघर हैं वो अपने अरकान को इजाजत नहीं देते, जैसे हुआ गवाह। मेरा मतलब बेरहम होना नहीं है, लेकिन ये सच है। उनके अराकीन को दूसरे गिरजाघरों का रूहानी मवाद पढ़ने की इजाजत नहीं है। अवाम पर ब्लाइंडर रखें, उन्हें सोचने ना दें। मुझे डर नहीं लगता। हम सवाल पूछते हैं। हम इस सच्चाई को जेर तफ्तीश रहने देने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि मैं हर इस चीज के लिए बाइबल की तरफ इशारा कर सकता हूं जिस पर मैं यकीन करता हूं। मैं तमाम मुख्तलिफ गिरजाघरों के मुबल्लिगीन के साथ टेलीविजन पर रहा हूं और मैंने कहा, आगे बढ़ो, मुझसे पूछो कि मैं क्या मानता हूं। मैं आपको एक सहीफा दूंगा। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तुम मुझे सहीफा दिखाओ। कभी कभी वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। बाबुल के कुछ मशहूर प्रोटेस्टेंट अकायद, मैंने अभी आपको उनकी मश्क की। 10 अहकाम में तरमीम मनसूख किया जा सकता है। इतवार रब का मुकद्दस दिन है। कहाँ? बाइबल में। रू लाफानी है। खुदा और खुदा सिर्फ लाफानी है। जब यसू आता है तब हमें लाफानी हो जाता है। खोए हुए को हमेशा के लिए सजा दी जाती है, भस्म होने के बजाय जलकर तबाह फना हो जाना। जुबानों की उलझन। जो लोग उसर्जन से बपित्समा नहीं लेते हैं वो शिरखार के तौर पर बपित्समा लेते हैं। एक पादरी कर सकता है, आपको पादरी के जरिए मुआफ करना पड़ेगा। बुत परस्ती, मुजस्समों से दुआ मांगना। मुझे लगता है कि मैंने एक को वहां छोड़ दिया है। मसीह के अलावा कोई और इंसान के आप औलिया से दुआ कर सकते हैं, बशमूल मरियम। बाइबल में कहीं नहीं दोस्तों, हालांकि वो एक दीनदार औरत थी। एक आदमी के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करना, गुनाहों की बख्शिश बेचने का ख्याल। मेरे पास किताबें हैं जहां मैं आपको दुखा सकता हूं। उनके पास एक कीमत की फहरिस्त थी कि आप एक मुख्तलिफ लज़्ज़त के लिए कितनी रकम अदा कर सकते हैं, और वैसे कैथोलिक चर्च ने इसे तर्क नहीं किया है। उनकी कुछ ईदें और ततीलात हैं जहां वो कहते हैं कि अगर तुम इस हज पर जाओ और इस दरवाजे से गुजरो तो तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे। इसे कामों से नजात कहते हैं। आपको बस दुआ करना है और यसू के खून का दावा करना है और अपने गुनाहों से तौबा करना है। ये एक तस्वीर है जो मैंने एक कैथोलिक चर्च की ली थी, जो चर्च के सामने 10 अहकाम रखने के लिए काफी अच्छी थी। नोटिस करें यहां कुछ गायब है। दूसरा हुक्म जो कहता है अपने अंदर किसी भी चीज का नक्श ना बनाना जो ऊपर आसमान में नीचे जमीन जमीन के नीचे पानियों की तरह हो। ताव अपने आप को उनके आगे ना झकना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं रब तेरा खुदा गैरतमंद खुदा हूं। उनकी तीसरी और चौथी नस्ल के बच्चों पर बाप की बदकिरदारी का दौरा करना जो मुझसे नफरत करते हैं, और उन हजारों पर रहम करना जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे अहकाम पर अमल करते हैं। ये अभी चला गया है। वो कहते हैं ठीक है, इसका खुलासा पहले हुक्म में है। ये दिलचस्प है। ये पहले हुक्म में बुतपरस्ती के बारे में कुछ नहीं कहता, और आप कहते हैं ठीक है, अब 10 नंबर को कैसे रखेंगे। ठीक है, हम 10वीं हुक्म को तकसीम करेंगे जो कहता है तुम लालच न करो। कहो अच्छा, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच अपने पड़ोसी के गधे की लालच से मुख्तलिफ है। ठीक है, जाहिर है कि वहां एक फर्क है, लेकिन लालच वो 10वीं हुक्म है। तमाम यहूदियों के पास हमेशा 10वीं हुक्म एक हुक्म है। ये लालच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यह हैवान की ताकत के बारे में क्या कहता है? डेनियल बाब 7 आयत 25 को पढ़े। वो सोचेगा ऐसा नहीं कर सकता। वो वक्त और कवानीन को बदलने का सोचेगा। आपने देखा कि वो सब्त का दिन भी बनाते हैं। कहते हैं 6 दिन मेहनत करो और सारा काम करो, लेकिन 7वां सब्त का दिन है, रब तुम्हारा खुदा, उन्हें सही दिन मिल गया। लेकिन कहते हैं कि अब इतवार 7वां दिन बन गया है। जब तक ये 7 में से एक दिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा दिन है। क्या ईसा ने कहा कि 7वां दिन रखो 7वां दिन? क्या मेरे कहने में कोई फर्क है कि आप मुझे किताब दें? किताब लफ्ज एक यकीनी मजमून है। अगर मैं कहूं क्या आप मुझे एक किताब दे सकते हैं, यहां कोई भी मुझे किताब ला सकता है। अगर मैं कहूं कि मुझे किताब दो, अब सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे और हैरान होंगे कि किताब किसके पास है। जब खुदा कहता है कि 7वां दिन रब का सब्त है और मैंने 7वें दिन को बरकत दी है, आपको कहना नहीं आता, लेकिन हां, बुध का दिन मेरा सब्त है। आप खुदा नहीं हैं। खुदा ने एक दिन चुना, और इसीलिए बाइबल में लोगों को सजाए मौत दी गई, इसे सही दिन न रखने की वजह से, खुदा के हुक्म के तहत। तो इससे रब को फर्क पड़ता है। वक्त और कवानीन को बदलने का सोचना, ताव अपने लिए कोई काढ़ हुई मूरत ना बनाना। और मैं आपके बहुत से कैथोलिक लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं ठीक है, हम वाकई तस्वीरों की पूजा नहीं करते। जब हम दुआ करते हैं तो वो सिर्फ उन सुन्नतों और बाइबल के किरदारों को देखने में हमारी मदद करते हैं। हम वाकई उनकी इबादत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल वही है जो एक बुद्धिस्ट कहता है। ये बुद्धिस्ट जानता है कि बुद्ध का चीनी मिट्टी के बर्तन का मुजस्समा बुद्ध नहीं है। लेकिन जब आपके पास ये होता है और आप उसके सामने मोमबत्तियां जलाते हैं और आप इससे दुआ करते हैं और आप इसे चूमते हैं और तुम उसके आगे झक जाओ, जिसे बुत परस्ती कहते हैं, खुदा कहता है कि तुम ऐसा ना करो।
پھر گستاخی کی بات کی انسان اپنے آپ کو خدا کے مقام پر رکھتا ہے۔ وہاں ایک سفید تخت پر بیٹھا تھا، دو فرشتوں کے درمیان عظیم سفید تخت کی طرح کروڑی فرشتوں کی طرح۔ یہ خدا کی نشست ہے جس کی بائبل میں تصویر دی گئی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تم میں گناہ کو معاف کرنے کی طاقت ہے، کہ آپ کے پاس خدا کے دوسرے شخص کا دفتر ہے۔ یہ ان کا سرکاری لقب ہے، شیطانی فلائی ڈی۔ تو ہم نے بات کی ہے پہلا جانور۔ کیا یہ واضح ہے؟ یہ وہی ہے جو تمام پروٹسٹنٹ اصلاح پسندوں نے کیا، اسی لیے انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا اب بائبل سے دور جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے، اسے مجھ پر مت اتارو، یہی بائبل کہتی ہے۔ نمبر 8، آخر وقت میں کون سی طاقت حیوان کا ساتھ دے گی؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہے جہاں ہم امریکہ جاتے ہیں، اور مجھے اپنے ملک سے پیار ہے۔ میرے پاس اب بھی پاسپورٹ ہے، میں حرکت نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کو بتانا پڑا امریکہ پیشین گوئی میں ہے۔ میں نے ایک اور کیا دیکھا؟ حیوان باہر نکل رہا ہے۔ زمین آپ کو احساس ہے کہ پہلا حیوان پانی سے باہر آتا ہے، پھر پانی کیا ہے؟ قوموں، زبانوں اور لوگوں کی کثیر تعداد۔ فرشتے نے یہی کہا، یہ وہی 17 ہے، یہ ایک سے باہر آتا ہے۔ زمین یہ دنیا کے بیشتر حصوں کے لیے ہے، ایک ایسا ملک جو نامعلوم اور غیر دریافت تھا، اور اس کا موازنہ یورپ میں آبادی کی کثافت سے کیا گیا تھا۔ بہت کم آبادی۔ تو آپ کو یہ دوسرا جانور مل گیا ہے۔ اس کے 2 سینگ ایسے ہیں جیسے میمنا نکلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ 2 سینگ کیا ہے؟ ہمارے پاس بادشاہ کے بغیر حکومت ہے، ہمارے پاس پوپ کے بغیر مذہب ہے، آزادی، چرچ اور ریاست کی علیحدگی۔ ہر کوئی عبادت کر سکتا تھا، اور یہ اصل میں ان اصولوں پر بنایا گیا تھا۔ ایک ڈریگن اب اس عورت کو ستا رہا ہے جو کم آبادی والے علاقے سے آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دوسرا حیوان کب پیدا ہوتا ہے؟ آئیے معلوم کریں کہ کیا یہ امریکہ ہے۔ خادی ایک دوسری طاقت کو بیان کرتا ہے جو پہلی طاقت کی طرح اسی وقت اٹھتا ہے۔ پاپل روم اسیری میں چلا جاتا ہے اور 1260 سال کے آخر میں ایک مہلک زخم پاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ 1798 کی بات ہے جب پوپ کو نپولین کے جنرل نے اسیر کر لیا تھا اور وہ یورپ پر اپنی بہت سی طاقت کھو چکے تھے۔ انہیں بنیادی طور پر اس وقت فرانس سے نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا بہت اثر کھو دیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے 1776 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن یورپ نے اسے تسلیم نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ انگلستان سے جنگ کون جیتنے والا ہے۔ یہ 1798 تک نہیں گزرا تھا کہ آخرکار انہوں نے معاہدے کرنا شروع کر دیے اور ہمارے سفیروں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور امریکہ کے ساتھ ایک آزاد ملک کے طور پر تجارت کی۔ اس دوران اٹھنے والے اس دوسرے حیوان کی تعریف پر کوئی اور فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم نے اس کے بارے میں بات کی جب یہ پیدا ہوا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کے برعکس پہلا جانور رومن ایمپائر میں آتا ہے، ہر جگہ گنجان آباد سڑکیں ہیں۔ جب وہ امریکہ کے ساحل پر اترے تو ہاں یہاں لوگ موجود تھے، لیکن یہ نسبتاً غیر آباد تھا، اور اسی لیے امریکی اترے اور وہ صرف ایک نسل میں ساحل سے ساحل تک پھیلنے لگے، اور خوفناک جنگیں ہوئیں جو مقامی لوگوں کے ساتھ لڑی گئیں۔ میں اس کا جواز پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مک پھٹا ہے۔ اس وقت یہ ایک بین الاقوامی طاقت بن گیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ جب اس کے قیام کے 22 سال بعد 1797 ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور اسے باقی دنیا سے الگ کر دیا گیا، چاہے وہ ایشیا ہو یا یورپ ہو، سمندروں میں گھرا ہوا ہو۔ ساحل سے ساحل تک ایک نئی قوم بھیڑ کے بچے کی طرح شروع ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ بھیڑ کے بچے کی طرح نہیں رہتا۔ مکاشفہ 13 میں دوسرے حیوان کی خصوصیات کی وضاحت یہ آخر میں قائم ہے۔ میں پہلے ہی اس کا احاطہ کر چکا ہوں۔ 1797 42 مہینے، تاریخ دور کے 3.5 سال، جب سے رومن چرچ نے پہلی بار اپنی فوج حاصل کی، جب تک کہ وہ نپولین کے زمانے میں اپنی طاقت کھو بیٹھے اور ہماری آزادی تھی۔ ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 پیشین گوئی کے مطابق امریکہ وقت کے ساتھ کیسے بدلتا اور بدلتا ہے۔ ایک کیا کی طرح 2 سینگ ہے، ایک میمنا لیکن یہ بولنا ختم کرتا ہے، ایک ڈریگن کی طرح۔ ہمارا ملک ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے کچھ رویے کو پہلے حیوان کے بعد ماڈل بنانا جو ٹھیک ہوا، یعنی یہ صرف ایک سیاسی ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی سیاسی ایذا رسانی بن جاتا ہے جو پوری دنیا کو مجبور کرتا ہے۔ اس ہفتے انہوں نے اقوام متحدہ اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں واقع ہے۔ ریاستہائے متحدہ، دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اسے بین الاقوامی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک فنکار نے کہا کہ یہ دلچسپ ہے، امریکی باسن کے چھوٹے سین ہوتے ہیں جو صرف امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جو تمام مویشیوں میں سے ایک ہے۔
मेमने की तरह 2 सींग, और फिर भी ये सबसे ताकतवर में से एक है। ये सिर्फ मामूली बात है। ड्रैगन की तरह बोलने का मतलब यह है कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका शैतान के जेर असर ऐसे कवानीन मंजूर करके आज़ादी के अपने असल उसूलों को तर्क कर देगा जो लोगों को इबादत करने पर मजबूर करते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है दोस्तों, ये आपकी बाइबल में है। दानियाल के 3 बाब में बादशाह कहता है सजदा करो और सजदा करो। हुकूमत कहती है इबादत करो, आमार डालो। दानियाल और शदरुक मीसक अब्दिनजो वो नहीं झुकेंगे। उन्हें सताया जाता है, यसू उन्हें नजात देता है। दानियाल का 6 बाब बादशाह हुकूमत कहता है तुम्हें पहला हुक्म तोड़ना होगा, आमार दिया जाए। आपको मुझसे 30 दिन तक दुआ करनी है। दानियाल ने कहा नहीं, 10 अहकाम जाओ। मैं खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं जा रहा हूं। वो सरकारी मजहबी कानून की नाफरमानी करता है और इसे सताया जाता है। आप इसे ईस्टर की किताब में ढूंढते हैं। तमाम इसराइल को नीस्तो नाबूद करने का हुक्म है, लेकिन मर्दुक्की नहीं झुकेगा। आमीन। ये वक्त के इख्तिताम पर दोबारा होने वाला है। हम कल सुबह इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे मत छोड़ें। नंबर 10, अमेरिका पहले की हिमायत कैसे करता है? वही तेरा के दज्जाल जानवर, वो जमीन और इसमें रहने वालों को किया करता है। पहले हैवान की प्रस्तिश करना जिसका मोहलिक जख्म भर गया था। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वाकई कुछ ऐसा होता है जब पहली बार कांग्रेस का मुश्तरका इजलास पोप की तरफ से खिताब किया जाएगा। मैं इससे बात करना चाहता हूं। क्या आप एक नोट भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या वो मुझे इससे बात करने की दावत देंगे? मैं इसे एक बाइबल मुताला देना चाहूंगा। कैरन और मैं पादरी रास और उसकी बीवी हम चंद साल पहले वेटिकन में थे। ये पिछले साल था। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं पोप को बाइबल का मुताला दे सकता हूं। मुझे खुशी होगी। ऐसा करो, पता नहीं कैसे चलेगा। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका अपने बानी उसूलों को पलट देगा। वहां आपको वेटिकन के झंडे और अमरीकी परचम के साथ वो नाकाबिल यकीन मंजर मिला है जो एक साथ एक माल पर हो रहा है, जो हजारों लोगों से भरा हुआ है, जो पोप को सजदा करने के लिए आ रहा है। ये मोहलिक जख्म शिफा हो गई है। अमरीका, क्या आप जानते हैं कि अमरीका कब वाशिंगटन यादगार बना रहा था? कि पोप ने संगमरमर का बलात भेजा था शिराकत करने के लिए, और ये के हासिल करने वाले अमरीकियों ने इसे दरियाए पोटोमैक में फेंक दिया। कहने लगे हमें दरिंदे से कुछ नहीं चाहिए। इसका कहना है कि वो जानवर की तस्वीर बनाते हैं। अब क्या ये दिलचस्प है कि यहां आपको वेटिकन में दारुल हुकूमत मिल गया है, और अब जानते हैं वेटिकन के सामने उन्हें एक शानदार ओबलिस्क मिला है, और आपके ख्याल में यूएस कैपिटल के सामने हमारे पास किया है दुनिया का सबसे बड़ा ओबलिस्क, जो कि 666 फुट लंबा है। मैं ये नहीं जानता, लेकिन किसी ने मुझे बताया। मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं। ये एक शहरी अफसाना हो सकता है। आप मुझे चेक करें। ये दिलचस्प है। जब अमेरिका कायम हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एहतजाज करने वाले थे। आज मेरे ख्याल में 2015 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोटेस्टेंट नहीं है। तकरीबन तमाम कैथोलिक, मेरे ख्याल में एक कैथोलिक एपिस्कोपल और एक यहूदी इंसाफ। और ये कहता है कि अमेरिका जबरी मजहबी कवानीन के इक़दामात पर अमल पैरा है। दोस्तों, मुस्तकबिल करीब में कुछ होने वाला है। 25 साल पहले हमने तबलीग की। इस इमारत में हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 3 बार दुआ की। फिर 9/11 हुआ। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा इंतबा का पैगाम भेजता है। खुदा लोगों से अपील करता है। हम फ्रीडम टाउन गए, शहर पर दोबारा नमाज अदा की। लेकिन कुछ होने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि ये एक माशी आफत है, कुदरती आफत। ये जंग होगी या तीनों एक साथ। हम इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और लोग खौफ से खुदा की तरफ रुजू करते हैं। और आपके ख्याल में वो कहां जाएंगे? खैर, स्टेब्लिशमेंट को। नंबर 11, आखिरी दिनों में कौन सी 3 ताकतें खुदा के लोगों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगी? मैंने मेंढकों जैसी 3 नापाक रूहें देखी। नकली तसलिस, ड्रैगन के मुंह से निकलना, हैवान के मुंह से, झूठे नबी के मुंह से निकलना। मैं आपको अपने असबाक को भरते हुए देखना पसंद करूंगा। वहां होने वाला है एक वाकया, कोई चीज जो इसे मुतहर्रिक करेगी आखिरी दिनों में, और आप दुनिया को बदलते हुए देखेंगे, खुदा को खौफ से। अब जानते हैं कि दुनिया में 1 नहीं 2.2 अरब ईसाई हैं, 1.7 अरब मुसलमान, फिर 16 मिलियन यहूदी हैं, और यहां तक कि बुद्ध मत और हिंदू, जो कि बाकी मानदा अक्सरियत हैं, एक मसीहा की तलाश में है आने के लिए।
शैतान ने कहा कि वो मसीह की नक्काली करने वाला है। जो लोग ये मानते हैं कि मुर्दा मुकद्दस लोगों से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, वो धोखे में पड़ जाएंगे। बादशाह साउल के सामने क्या हुआ? एक जंग में सब कुछ खो दिया। वो अंदूर की चुड़ैल के पास गया। ये बुरी रूहें जमीन के बादशाहों के पास जाने वाली हैं और वो धोखा देने वाली है। निशानियां और अजायबात होंगे और हम उसके दहाने पर हैं। आखिर वक्ती इत्तेहाद कौन से मुअस्सर तरीके इस्तेमाल करेगा? वो किस चीज की रूह है? शैतान कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। निशान, वो जबरदस्त कारकर्दगी दिखाता है। निशानियां ताकि वो लोगों के सामने आसमान से जमीन पर आग बरसाकर उनको धोखा दे सके। बाइबल में अलिफाला ने दुआ की और आग नाजिल हुई। यह खुदा की कुदरत की निशानी थी। यह हैवान खुदा की कुदरत की निशानी का नमूना बनने वाला है और यह धोखा देगा। अब जानते हैं शैतान आग को नीचे ला सकता है। वो अय्यूब की किताब में करता है। लिहाजा हमें अपनी बाइबल को इससे बेहतर जानना है जो हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं जो आप देखते हैं या आप कैसा महसूस करते हैं, तो आप शैतान के लिए बैठी हुई बत्तख हैं। आपको बाइबल क्या कहती है इस पर अमल करना होगा। खुदा के आखिरी वक्त के लोगों को धोखा देने से क्या रोकेगा? सा 8 आयत 20 के मुताबिक शरीयत और गवाही वही शरीयत और नबी खुदा के अहकाम और ईसा की गवाही है। यही वो चीज है जो हमें धोखा देने से रोकेगी। हम एक ऐसे दहाने पर हैं जहां आप आखिरी दिनों में एक मजहबी इत्तेहाद देखने जा रहे हैं। हैवान और उसकी कुव्वतें मुत्तहिद होने वाली हैं और जो लोग पहले हैवान की प्रस्तिश नहीं करते वो खरीद और फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बिलाखिर मौत का हुक्मनामा आने वाला है, लेकिन ऐसा होने से पहले खादी अपने लोगों को बाबुल से बाहर बिला रहा है। वो आपको बिला रहा है, अब जो देख रहे हैं, अब जो यहां है। वो आपको अपनी बादशाही में चाहता है और अभी दुआ के साथ खत्म होने से पहले हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। मैं आपसे फैसला करने के लिए कहूंगा। खुदा की आवाज सुनने का बेहतरीन वक्त वो है जब आप खुदा की आवाज सुन रहे हो। क्या आप आमीन कह सकते हैं? मैं चाहूंगा कि हमारे शुरू करने वाले हमारे कतार के मेजबान मैनहट्टन में रहने वालों के लिए एक कार्ड पास करें। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो अपना हाथ उठाएं। वो आपको एक बर्तन देंगे। जो लोग देख रहे हैं, आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। आप प्राफसी आदसी पर जा सकते हैं और हमें बताएं कि क्या खुदा ने आपसे बात की है। ये एक तरफ हस्पानवी है, दूसरी तरफ अंग्रेजी। मेरे पास 4 सवाल हैं, इस पर अपनी मालूमात दें। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं और उसके बाद जान हमारे लिए एक आयत गाने वाला है। नंबर 1, मैंने यसू को अपने जाती निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है और मैं इसकी पैरवी करना चाहता हूं जहां वो ले जाता है। आप शायद बाबुल में हों, लेकिन आप उसके बच्चे हैं और आप उसकी पैरवी करना चाहते हैं। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो इसे लिख दें। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगला सवाल, मैं बाइबल से देख रहा हूं कि इन आखिरी दिनों में खुदा के पास एक बकिया लोग हैं। क्या तुम इसे देखते हो? कल सब पर खुदा की मेहर होगी, हैवान का निशान। तीसरा सवाल, मैं रूह और सच्चाई से इबादत करना चाहता हूं और मैं आखिरी दिनों में खुदा की बकिया तहरीक में शामिल होना चाहता हूं। खुदा अपने लोगों को एक साथ मिला रहा है। आपको एक मौक़िफ़ लेने की जरूरत है दोस्तों। आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं हैं। आप किसी भी चीज के लिए गिर जाएंगे और आखिर में आपके पास अब भी सवालात हो सकते हैं और आप उन सवालात के जवाबात चाहते हैं। इसे भरें। ये सवाल नंबर 4 है। मेरे पास इस मौजू के बारे में सवालात हैं और मैं मजीद मदद हासिल करना चाहूंगा। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसे पुर करें। और फिर मैं आपके साथ नमाज पढ़ने जा रहा हूं। और जब आप अपना कार्ड पुर कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने कार्ड्स को मरकज के गिलियरे तक पहुंचा दें। आप उसके लोगों का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो हमें अपने कलाम पर इकट्ठा कर रहा है। यसू वो लफ्ज है। क्या मैं आपके साथ नमाज पढ़ सकता हूं दोस्तों? आइए सर झुका ले। प्यारे खादोनत, बराहे करम यहां उन सब के साथ रहूं जो देख रहे हैं, जिन्होंने रूह अल कुद्स को मुकद्दस किताब के जरिए बोलते हुए सुना है। और मैं दुआ करता हूं कि वो आज रात यसू को हाँ कहने की हिम्मत करेंगे। हम उसके नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। अगली मुलाकात कब है? कल सुबह। शैतान का निशान खुदा की महर। हमें उम्मीद है कि आप आएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अभी तक कहीं नहीं जाना।